Let me tell you a story. It was around the summer of 2018 and I was about to give NEET in 1 year. हमने recently एक 720 marks का mock test दिया था and I got the same marks in physics as well as biology. My bio was extremely weak and मेरा government college का सपना मुझसे और दूर जा रहा था. Just a few days after this exam, I was in the chemistry lab of my junior college. Basically, one of my friends, Bhakti, and I, both of us had not completed our chemistry journal, so we were completing our chemistry journal in college. And just a few days after this exam, my friend Bhakti and I were in the chemistry lab of our college finishing our journal, and what happened next probably changed my life forever. Journal submit करने के बाद we started walking towards the gate of our college. Gate पे जाते जाते we started talking. बात करते करते हमको ये realize हुआ कि मेरी bio weak है and उसकी physics. So we both agreed to help each other out. That same night I got a call from her and she started asking me questions from NCERT biology. She asked me कौन सा chapter पढ़ा है and what chapter are you confident about? I said cell biology. She asked me 3 basic questions and I could answer 0. मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई. I just told her कि मैं यहाँ पे bio पढ़ने आया हूँ, खुद की बेइज्जती करने नहीं आया. And that's how my biology preparation began. We started calling each other up 2 or 3 times every week and started asking each other questions. My marks in my test slowly started to go up. Not because she taught me bio really well, but because of the fact that the questions that we used to discuss started showing up here and there. And during exams, जो भी हमने discuss किया था उसमें से कोई question आता, I would easily remember the answer of it. Not because of the fact that we spent hours studying biology, but because of the fact that my studies was associated with an emotion. And for me, the emotion was of embarrassment and frustration. Hello everyone, I'm Tanmay Bhandari and I'm a final year MBBS student at BJMC Pune. Initially, I was very weak at biology, but eventually I got an All India rank of 2255 in my NEET, which gave me an easy entry into any medical college in Maharashtra. In this video, I'm going to give you a full guide on how to study biology for NEET. The first step towards a perfect score in biology is to use the right resources. So resources for NEET biology are pretty straightforward. First of all is your Bible, that is your NCERT, and next up come your MCQ books and question banks in order to practice NCERT and take it to the next level. This video is unsponsored because I'm not trying to sell you anything. I'm just trying to provide you value as your elder brother. NEET में 99.99% questions NCERT से आते हैं. You need to learn NCERT line by line is what we've always heard, but is something that we don't act on. Every year 20 lakh students NEET देते हैं and as of this moment there are 50 lakh students who are preparing for NEET right now. इन सबको पीछे छोड़ने के लिए हमको लगता है कि हमको इनसे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, बट दिस इज रॉन्ग. इनको पीछे छोड़ने के लिए हमको जो दिया है वो अच्छे से पढ़ना है एंड दैट इज NCERT. द प्रॉब्लम विद मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स राइट नाउ इज दैट दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू विद एक्सटेंसिव मॉड्यूल्स ताकि उनका स्ट्राइक रेट ऊपर जाए. स्ट्राइक रेट इज द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द NEET एग्जाम फ्रॉम देयर मटेरियल. एक या दो क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं उनको कवर करने के चक्कर में और उनका स्ट्राइक रेट बाकी सारे कोचिंग क्लासेस से आगे लेके जाने के लिए वो लोग बहुत ज्यादा जंक मटेरियल दे देते हैं. एक्चुअल तुम्हारा कंटेंट इतना होता है एंड जंक मटेरियल इतना होता है. सो वी रियली नीड टू फिल्टर आउट आवर कंटेंट. हमको सबसे प्योरेस्ट, सबसे हाई यील्डिंग कंटेंट चाहिए एंड वो हमको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ NCERT में. काफी सारे बुक्स, काफी सारे रिसोर्सेज ऐसे बोलेंगे कि हम लोग तुम्हारा NCERT पढ़ना इजियर बना देंगे, बट बेसिकली वो NCERT का कंटेंट लेके अपने कंटेंट में डाल रहे हैं. इससे अच्छा क्यों ना हम सिर्फ NCERT ही पढ़े. हम डायरेक्ट सोर्स पे पढ़ रहे हैं. वी आर लर्निंग फ्रॉम द प्योरेस्ट मटेरियल आउट देयर. आई हैड बॉट मोर देन 60 बुक्स ड्यूरिंग माय NEET preparation just because of FOMO and NCERT is the most high yielding book. उसके बाद you need to practice some MCQs. MCQ practice करने के लिए मैंने एक बुक लिया हुआ था MTG वाला एंड दूसरा एक बुक मैंने लिया हुआ था जिसमें NCERT based MCQs थे. मैंने वो पर्टिकुलर बुक चूज किया हुआ था बिकॉज हमारे कोचिंग क्लास में और हमारे टेस्ट में वो बुक से क्वेश्चंस आते थे. सो इन ऑर्डर टू हैव एन एक्स्ट्रा एज एंड टू गेन कॉन्फिडेंस ओवर अदर्स इन माय कोचिंग क्लास, आई नो इट साउंड स्टूपिड, तो मैंने वो बुक लिया हुआ था बट आई डिडंट यूज इट एज मच एज NCERT. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टीच यू हाउ टू रीड NCERT. फर्स्ट, जब भी तुम कोई चैप्टर NCERT में से उठाओगे, रीड इट एज अ स्टोरी बुक. जस्ट ट्राई टू गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट द चैप्टर इज अबाउट एंड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू. वंस यू गेट दैट out of the way, you can move on to your lectures online or offline. वो lectures में your teachers might teach you stuff from the NCERT and might
teach you stuff that is outside the NCERT. Whatever it is, don't write any extra point in your NCERT. Just write it in a separate notebook. After that is over, go back home and read the NCERT again properly. And इस बार हम concepts को समझने की कोशिश करेंगे. अगर एक कोई concept समझ नहीं आ रहा, for example genetics and cell biology starting में tough लगता है, so अगर वो concept समझ में नहीं आ रहा, we can go on YouTube and watch videos about that specific subtopic. जंक content consume करने की कोई जरूरत नहीं है. It's a waste of your time. Time is your most precious resource and वो time हम physics and chemistry improve करने में भी लगा सकते हैं. एक बार तुम्हारे doubts, concepts clear हो जाए, then you can probably solve an MCQ book like MTG. MTG is my favorite book for biology because उसमें 115 questions में एक पूरा chapter अच्छे से वो लोग cover कर देते थे. After that, you go back to your NCERT and underline the questions or the points that you've got wrong. कोई conceptual चीज underline मत करना. Concept तुम समझ लेना और एक बार समझा हुआ concept हम भूलते नहीं है. Factual points को underline करना and जो word, जो keyword है उसको identify करो और उसको underline करो. उसके बाद you need to give 100 questions का test in that particular topic. जो coaching class में मैं जाता था वहाँ पे हर एक chapter का 100 questions का test होता था. तो एक एक chapter मेरे लिए clear होता गया और हर एक chapter को पढ़ने का मेरे पास एक framework था. उस test में questions NEET and NCERT level के ही होने चाहिए. अगर वो level के questions है, you need to get 85 to 90 questions right in that test. वो test होने के बाद हम NCERT को revisit करेंगे और उसको वापस अच्छे से पढ़ेंगे and उसके बाद हम वही chapter के PYQs अच्छे से solve कर लेंगे. ये तुम्हारा personal call है. अगर तुम चाहते हो तो तुम PYQs अपने test से पहले भी solve कर सकते हो ताकि test में अच्छे marks आने से तुम्हारा confidence और भी boost हो जाए अगर तुम low confidence से deal कर रहे हो. But I would still prefer कि तुम PYQs बाद में solve करो. PYQs को solve करने के बाद जो question तुमको गलत जा रहे हैं, जो questions PYQ में भी बार बार repeat हो रहे हैं, इन questions को हमको highlight करना है. अगर PYQs में कोई extra points दिए गए हैं या फिर कोई point का explanation अच्छे से दिया हुआ है या फिर NCERT के कोई line का मतलब तुमको तुम्हारे teacher, friend या YouTube से तुमको अच्छे से समझ में आया है, you can write it on the sides of your NCERT. ये तुम्हारी NCERT को complete बनाता है. एक और mistake जो मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है कि वो लोग Truman पढ़ते हैं, वो लोग मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, वो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने NCERT में भर देते हैं, उनकी NCERT को जंक बनाते हैं, उसके बाद NCERT के नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स पढ़ते हैं. हाउ स्टूपिड इज दैट? अगर तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ने हैं तो तुम NCERT से ही पढ़ो प्लीज, और NCERT को एकदम क्रिस्पी रखो ताकि लास्ट 4 दिन में तुम एक ही बुक को रिवाइज कर पाओ. क्वेश्चन सॉल्व करने की एक इजी ट्रिक बताता हूँ. तुम 3 हाइलाइटर्स यूज करना. इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए तुम ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज हाइलाइटर यूज करो. एंड जब तुम रिवीजन के लिए जाओगे या जब तुमको कोई टॉपिक रिविजिट करना है तो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑरेंज हाइलाइटेड क्वेश्चंस को रिविजिट करोगे. एंड रिवीजन करते समय भी तुम अंडरलाइंड एंड हाइलाइटेड पॉइंट्स पे ज्यादा एम्फेसिस दोगे व्हाइल रिवाइजिंग, बिकॉज जो हमको आता है उसको बार बार रिवाइज करने से सूडो कॉन्फिडेंस आता है. एंड जो हमको नहीं आता, जो हमारे वीक पॉइंट्स है, उनको पिन पॉइंट करके उनको स्ट्रॉन्ग करने से रियल मार्क्स और रियल कॉन्फिडेंस आता है. ये पॉइंट पे तुमको एक स्टडी बडी का बहुत अच्छा यूज होगा. क्लास में बैठे बैठे अगर टीचर नहीं आए हैं, ब्रेक दिया हुआ है, ऐसे ही रैंडमली एक दूसरे पे रैपिड फायर NCERT क्वेश्चंस करना इज प्रोबेबली द बेस्ट वे टू लर्न एंड इट इज द मोस्ट अंडररेटेड एंड आई डोंट नो व्हाई नो वन टॉक्स अबाउट दिस. जब तुम तुम्हारे मॉक टेस्ट देने जाओगे तब बहुत सारे लोग पूरी NCERT पढ़ने का कोशिश करते हैं, बट इससे अच्छा जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है, जो सेक्शंस में तुम कॉन्स्टेंटली लो स्कोर कर रहे हो उस पे फोकस करो. उसके जो अंडरलाइंड एंड हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको फोकस करो. उसके ऑरेंज हाईलाइटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड धीरे धीरे तुमको वो कॉन्फिडेंस आते जाएगा एंड वो तुम्हारे स्कोर्स में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा. मैंने जो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटर किया हुआ है उनसे मुझे एक क्वेश्चन बार बार आता है कि हमारे कोचिंग क्लास में, हमारे एग्जाम्स में बार बार आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए हमको उनका मॉड्यूल पढ़ना ही पड़ता है. सो आई टेल देम कि लुक एट द बिगर पिक्चर. इट्स नॉट पर्टिकुलरली देयर फॉल्ट कि उनको ऐसा फील होता है एंड ऐसा फील होना नेचुरल है, बट हमको बड़े पिक्चर को देखना है और हमको एक और पॉजिटिव पॉइंट को देखना है कि जंक कंटेंट को अवॉइड करके हम हमारी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी ऊपर ला सकते हैं. एंड इवेंचुअली हमारा नीट में जब रैंक आएगा तब हमको हमारे क्लास टेस्ट से ज्यादा नीट के मार्क्स याद रहेंगे और नीट के मार्क्स डेफिनेटली अच्छे ही होंगे. लास्ट फ्यू मंथ्स बिफोर नीट जब तुम पढ़ने जाओगे तब तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके रखना ताकि लास्ट के 2 या 3 दिन पहले जब पढ़ने का मौका आए हम अपने वीक और वॉलेटाइल पॉइंट्स पे फोकस करके उनको स्ट्रॉन्गर बना पाए एंड वी विल डेफिनेटली गेट अ बेटर रैंक इन नीट. MCQ सॉल्विंग इज एन आर्ट एंड
काफी बार हमको एलिमिनेट करके आंसर्स पे पहुंचना पड़ता है। काफी टाइम्स लैंग्वेज ट्रिकी होती है, इसलिए हम फंस जाते हैं वो लैंग्वेज में। काफी टाइम क्वेश्चन बड़ा होता है। सो अगर हम बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर पाएंगे तो इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करना हम अच्छे से सीख पाएंगे। और अगर हमारा एमसीक्यूज पे अच्छा कंट्रोल है, उस दिन नीट के एग्जाम के दिन पे पैनिक सिचुएशन में हम हमारा बायो 1 घंटे में इजीली नॉकआउट कर पाएंगे, ताकि हमको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए ज्यादा टाइम मिले और हम हमारे आंसर्स डबल चेक कर पाए, क्योंकि एग्जाम का नर्वसनेस अलग लेवल पे होता है। इफ दिस बायोलॉजी ऑनेस्ट फुल गाइड हैज हेल्प्ड यू आउट, आई स्कोर्ड 175 आउट ऑफ 180 इन अ डिफिकल्ट फिजिक्स पेपर बैक इन 2019। अगर तुमको मेरी फिजिक्स स्ट्रैटेजी जाननी है, फिजिक्स कंप्लीट गाइड देखना है, you have to go and watch this video, and I will see you back here again at the same time with another video tomorrow. Peace.